Dear students, our today's topic is feedback in amplifier. As this term feedback, it suggests what basically the meaning of this word. Feedback means taking some part from the output and feed it back to input. That is feedback. And in case of amplifiers, feedback is what? Either we take some voltage from the output and put back this into input, or we can take some current from output or fed back to input. So that's why on depending on these two things, the feedback can be of two types. It can be voltage feedback, it can be current feedback. When the signal feedback is proportional to output voltage, then it is voltage feedback, and if it is proportional to output current, it is current feedback. Moreover, this feedback it can be positive as well as negative. पॉजिटिव फीडबैक का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास जो सिग्नल फीडबैक हम कर रहे हैं, जो आउटपुट से सिग्नल लेके हम इनपुट में डाल रहे हैं, और इनपुट दोनों अगर सेम फेज में हो तो ऑब्वियसली दे विल बी एडेड, एंड इफ दे विल बी एडेड देन द फीडबैक विल बी पॉजिटिव फीडबैक. And if we take the part of some output and fed back to input and both are in out of phase, means the feedback signal is out of phase of that of the input signal, then it will be a negative feedback. And when it is a negative feedback, it means it reduces the total signal. So in case of positive feedback, obviously when signal is increased, so gain is increased, and with this increase in voltage gain, obviously distortion will increase and noise will also increase, and when distortion and noises will increase, it means they will reduce the stability of the input voltage. It means positive feedback is better for obtaining gain, but it will reduce the stability of the circuit. Second, when we talk about negative feedback, it means it will decrease the gain because the total signal is decreased, so it will decrease the gain, but it also decrease the distortion as well as noises in the output signal. It means when distortion and noises are reduced, means stability is increased. As we can see from this diagram, suppose this is our input signal and this is feedback signal. We can see both are in same phase. When these both are in same phase, when this is fed back to this, it means the total signal is increased. It is a positive feedback. And when suppose this is a input signal and this is feedback signal, both are in opposite phase. ये हमारे पास जिस phase में positive है, इस particular के अंदर ये negative है. It means the total signal is reduced. When total signal is reduced, it means it's a negative feedback. But जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फीडबैक सर्किट्स, जब हम सर्किट्स की बात करेंगे तो जैसे हमने पिछले उसके अंदर किया कि हमारे पास दो तरह का फीडबैक हो सकता है. ये वोल्टेज फीडबैक हो सकता है, ये करंट फीडबैक हो सकता है. अगर वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज फीडबैक है, और अगर करंट के प्रोपोर्शनल है तो करंट फीडबैक है. और हम उसको पैरेलल में भी डाल सकते हैं, हम उसको सीरीज में भी डाल सकते हैं. इसका मतलब जो टोटल फीडबैक सर्किट्स हम डिजाइन करेंगे वो हमारे पास किस तरह का होगा. फर्स्ट वन इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक, सेकंड इज वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक. यू कैन सी व्हेन वी टेक द पार्ट ऑफ आउटपुट फॉर फीडिंग बैक टू इनपुट, अगर हम ये दोनों टर्मिनल से उठाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से, इट इज ऑलवेज वोल्टेज फीडबैक. हमने कुछ पार्ट ऑफ वोल्टेज यहाँ से उठाया, ये हमने बीटा हम बोलते हैं फीडबैक जो हमारा फैक्टर होता है, जितना प्रोपोर्शनल पार्ट हम वहाँ से उठा रहे हैं, ये उठाया, एंड वी आर फीडिंग बैक टू सिंगल टर्मिनल. इट मीन्स इट इज वोल्टेज फीडबैक यहाँ से कह सकते हैं, और क्योंकि हमने ये एक इसके अंदर डाल दिया तो इट इज सीरीज फीडबैक. इसका मतलब ये जो सर्किट है इट इज फॉर वोल्टेज सीरीज फीडबैक. सिमिलरली इसके अंदर जब हमने दोनों टर्मिनल से उठाया तो इट इज वोल्टेज फीडबैक एंड इट इज फेड बैक एट बोथ आर टर्मिनल्स, तो शंट की फॉर्म में, तो इट इज वोल्टेज शंट फीडबैक.
ये जो तीसरा है ये हमने क्या किया, एक ही टर्मिनल से उठाया, इट मीन हमने करंट के प्रोपोर्शनल कर दिया। जब हमने करंट के प्रोपोर्शनल इसको उठाया और एक पे डाल दिया, इट इज करंट सीरीज फीडबैक। और जब हमने इसको करंट से उठाया और अलग अलग पे डाल दिया, अलग अलग टर्मिनल पे डाल दिया, इट मीन्स इट इज करंट शंट फीडबैक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इज these three, then the series feedback जो connections हैं, they generally tend to increase the input resistance while the shunt feedback tend to decrease the input resistance। तो हमें जिसकी जरूरत होगी, अगर हमें सपोज इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सीरीज फीडबैक यूज करेंगे। अगर हमें इनपुट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे, शंट फीडबैक यूज करेंगे। इसी तरह जो वोल्टेज फीडबैक है, दैट टेंड्स टू डिक्रीज द आउटपुट इंपीडेंस while the current feedback tends to increase the output impedance। इसका मतलब वोल्टेज फीडबैक यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज करेगा, जबकि हम करंट फीडबैक यूज करेंगे तो आउटपुट इंपीडेंस हमारा वो क्या है, वो इंक्रीज करेगा। अब बात यह होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये तो हमने चारों की कैरेक्टरिस्टिक देख ली कि जहां अगर हम शंट में लगाएंगे तो वो किस चीज पे इफेक्ट डालेगा, अगर हम सीरीज में लगाएंगे किस चीज पे इफेक्ट डालेगा, वोल्टेज करेंगे किस चीज पे इफेक्ट डालेगा, करंट करेंगे किस चीज पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन हम जब एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो एम्पलीफायर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है, दैट शुड बी हाई, और जो आउटपुट इंपीडेंस है दैट शुड बी लो। इसका मतलब हम जो जनरली यूज करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, वो क्या करते हैं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक ही हमेशा हम यूज करते हैं जब भी हमें वोल्टेज का एम्पलीफायर बनाना होता है। तो वोल्टेज फीडबैक हम यूज करेंगे, इट मीन्स आउटपुट से हम वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल कुछ पार्ट उठाएंगे और उसको फीडबैक करेंगे, और जो फीडबैक हमारा रहेगा वो सीरीज में रहेगा। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर्स। When we move to next topic, तो अब हम ये देखेंगे कि जो फीडबैक है, फीडबैक बेसिकली वोल्टेज गेन पे क्या इफेक्ट डालता है। जब हम वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर यूज कर रहे हैं, हमने जैसे कर लिया ना कि हमें वोल्टेज फीडबैक लेना है, इसका मतलब दोनों से यहाँ से उठाया प्रोपोर्शनल, यहाँ से पता लग रहा है कि जो VF है, VF इज फीडबैक वोल्टेज, VF इज बीटा टाइम V नोट। इसका मतलब बीटा हमारे पास क्या है, वो फैक्टर है जितना पार्ट हम उसका V नोट का जो यहाँ से लेके और इनपुट के अंदर वापस फीडबैक कर रहे हैं, और एक ही टर्मिनल पे, इट मींस इट इज सीरीज फीडबैक। तो ये जो सर्किट है हमारे पास, ये क्या है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो अगर हम माने कि सपोज हमने जो एम्पलीफायर यूज किया उसका जो वोल्टेज गेन है वो A है, VS हमारे पास क्या है कि जो इनपुट सोर्स सिग्नल, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज है, V नोट हमारे पास क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है। अगर हम बीटा फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफर टू इनपुट वोल्टेज, देन हमारे पास V इनपुट जो एक्चुअल में अप्लाई हो रहा है, V इनपुट क्या है, VS प्लस बीटा टाइम्स V नोट, VS जो पीछे से आ रहा है और प्लस VF ऑब्वियसली जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट वहां से उठाया, और VF हमारे पास क्या है, बीटा V नोट। तो हमारे पास जो टोटल VI हो गया, VI क्या हो गया, VI इज VS प्लस बीटा टाइम V नोट। और हमें पता है एज A इज द वोल्टेज गेन, इट मींस A इज V नोट ओवर VI, क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन है वो हमारे पास A है तो V आउटपुट ओवर V इनपुट इज A। इट मींस हम बात करेंगे व्हेन V आउटपुट इज इक्वल टू A टाइम्स VI, दस जो V आउटपुट हमारे पास क्या हो गया, A, VI की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, इट इज VS प्लस बीटा V नोट, इट इज AVS प्लस A बीटा V नोट। ये दो पार्ट आ गए, V नोट की टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया, V नोट इंटू 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू A VS, और द वोल्टेज गेन इन द फीडबैक एम्पलीफायर, सपोज हमने उसको A1 मान लिया, वो किसके बराबर होगा, V नोट जो आउटपुट है ओवर VS, ताकि इसको भी इंक्लूड करके आ जाए। A था सिर्फ इतने पार्ट के लिए, और जो VS है, जो A1 है, वो है पूरे पार्ट के लिए। तो हमने किया A1 इज इक्वल टू V नोट ओवर VS, V नोट ओवर VS, V नोट ओवर VS हमारे पास क्या होगा, A ओवर 1 माइनस A बीटा, वेयर A1 इज कॉल्ड वोल्टेज गेन और इट इज क्लोज्ड लूप गेन। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है, जब ये लूप हमारा क्लोज हो जाता है तो इट इज क्लोज लूप। जब हम क्लोज लूप की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये विद फीडबैक है, जब हम ओपन लूप की बात कर रहे हैं तो वो हमारा विदाउट फीडबैक है। ये बात ध्यान रखना।
एंड दिस बीटा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है गलती से, दिस बीटा इज कॉल्ड द फीडबैक फैक्टर। एंड इन द अबव एक्सप्रेशन हमने जो बीटा है, बीटा को पॉजिटिव लिया है, हमने क्या लिया है, वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नोट, हमने इसको नेगेटिव नहीं लिया, हम इसका जो फीडबैक है इस केस में इट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो एज बीटा इज लार्ज, but it is less than 1, then this 1 minus a beta, when beta is large, so a beta will be large, and when a beta will be large, 1 minus a beta will be small, so that's why this voltage gain it becomes large, क्योंकि जो voltage gain हमारे पास आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब हम जैसे जैसे हमारा बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, 1 माइनस ए बीटा कम होगा, जैसे जैसे 1 माइनस ए बीटा कम होगा तो हमारे पास जो टोटल ये फैक्टर है ये हमारे पास बढ़ेगा, इसका मतलब जो वोल्टेज गेन है वो बढ़ेगा। इफ ए बीटा इज इक्वल टू 1, ये देखो कि ये यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है और एक कंडीशन हम कह सकते हैं। इस फॉर्मूले से मैं बताता हूँ, हमने हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस ए बीटा, सपोज दिस ए बीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 माइनस ए बीटा इज 0 एंड a1 इज इन्फिनिटी, a1 इज इन्फिनिटी, गेन इज इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है कि गेन इज इन्फिनिटी, इट मीन्स गेन क्या है, आउटपुट और इनपुट, एंड इफ इट इज इंफिनिटी इट मींस वी आर गेटिंग आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, आउटपुट विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। हमने सिर्फ जो फीडबैक लिया, फीडबैक से ही एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो सारे का सारा फीडबैक के कोरस्पोंडिंग आ रहा है, हमें कोई भी इनपुट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट्स व्हाई दिस गेन इट बिकम्स infinity. It means a continuous output will be obtained without any external input. And ये जो important चीज है, it is the basic condition, necessary condition for oscillators. जो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर ऑसिलेटर्स के बारे में बात करेंगे, तो ऑसिलेटर्स के होने के लिए कोई भी ट्रांजिस्टर को जब हम ऑसिलेटर के तरह यूज करेंगे तो उसकी बेसिक कंडीशन ही यही है कि दिस ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बार्कहाउजेंस कंडीशन। इट इज बार्कहाउजेन कंडीशन। ये आपके पास एग्जाम में भी पूछ लेते हैं व्हाट इज बार्कहाउजेन कंडीशन, या तो हमारे पास फोर्थ यूनिट के कोरस्पोंडिंग में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बार्कहाउजेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस। तो बार्कहाउजेन कंडीशन कह लो, बार्कहाउजेन क्राइटेरिया कह लो, ऑसिलेटर की बेसिक कंडीशन कह लो, ये सारी एक ही हैं कि वेन एवर ए बीटा इज इक्वल टू 1 बट इन पॉजिटिव फीडबैक। ये बात ध्यान रखना कि इसका मतलब हम जब भी ऑसिलेटर बनाएंगे या यहां से बेस शुरू हो रहा है हमारे पास ऑसिलेटर वाले यूनिट का, नेक्स्ट यूनिट का, फोर्थ यूनिट का, इसका मतलब जब भी हम ऑसिलेटर बनाएंगे हमें फीडबैक यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा, और हमें जो फीडबैक फैक्टर यूज करना पड़ेगा, बीटा यूज करना पड़ेगा, वो इस तरह से यूज करना पड़ेगा कि ए बीटा की वैल्यू हमारी 1 आ जाए ताकि वो ऑसिलेटर की तरह काम करे। और जो ये कंडीशन है कि ए बीटा इज इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज दिस बार्कहाउजेन कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट ये जो हमने तो किया था उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक के लिए, बट अगर नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव का मतलब बीटा इज नेगेटिव, व्हेनेवर बीटा इज नेगेटिव तो दिस फैक्टर विल बिकम 1 प्लस ए बीटा। इसका मतलब उस केस में हमारे पास A2 जो बन जाएगा, वोल्टेज गेन जो बन जाएगा, दैट विल बी A ओवर 1 प्लस ए बीटा। तो जब भी हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं इट इज 1 प्लस ए बीटा, जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं इट इज 1 माइनस ए बीटा। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अब क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ए बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ए बीटा की वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी टोटल फैक्टर की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे टोटल फैक्टर की वैल्यू कम होगी A2 हमारा कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम फीडबैक बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या है कि जो वोल्टेज गेन है वो हमारा डिक्रीज करता है। और लेकिन इसका फायदा क्या है कि जो डिस्टोर्शन और नॉइसेस, क्योंकि हम फीडबैक को जो लगा रहे हैं वो आउट ऑफ फेज लगा रहे हैं, आउट ऑफ फेज का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जो हमारे पास नॉइसेस आ रही है, जो डिस्टोर्शन आ रही हैं, और जो फीडबैक से आया उससे उल्टा होकर सिग्नल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा दैट विल बी नॉइस फ्री, दैट विल बी डिस्टोर्शन फ्री। जब भी नॉइस फ्री और डिस्टोर्शन फ्री सिग्नल आएगा इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल की स्टेबिलिटी है दैट इज इंक्रीज्ड। एंड इफ ए बीटा इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, अगर हम बीटा को इस तरह से ले लें कि ए बीटा 1 के कंपेरिजन में बहुत बहुत ज्यादा हो जाए तो it becomes A2 becomes A over A beta or 1 plus beta. 1 plus beta means it is independent of the voltage gain of the amplifier.
This means the overall voltage gain becomes independent of voltage gain A in the absence of feedback. It means any factor which may cause change in the value of A will not enter the effective value voltage gain A2 of a negative feedback amplifier. In other words, the factors like variation in supply voltage, current gain of transistor will not have any practical effect on the gain of the negative feedback amplifier. The stability of the amplifier is much more with a negative feedback. तो जब भी हम negative feedback यूज करेंगे, although gain will be decreased, but stability will increase. तो जनरली जब हम एम्पलीफायर्स को बनाते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो एम्पलीफायर्स के लिए हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, और जब भी हम ऑसिलेटर्स बनाते हैं उसके लिए हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक. हमने जैसा किया, नेगेटिव फीडबैक से क्या है, स्टेबिलिटी गेन हमारा बढ़ जाएगा. ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था जो नॉइसेज और डिस्टोर्शंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. जब नॉइसेज और डिस्टोर्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. इट इंक्रीजेज द बैंडविड्थ. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंक्रीजेज द बैंडविड्थ. जब हम इंक्रीजेज द बैंडविड्थ की बात करते हैं तो जो 1 प्लस ए बीटा का फैक्टर है, इसका मतलब हमारे पास जो लोअर कट ऑफ है, लोअर कट ऑफ तो क्या है, 1 प्लस ए बीटा के कोरस्पोंडिंग डिक्रीज करेगा. कि ये आगे हमारे पास ये बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक, गेन डिक्रीज कर गया, इट इज बैंडविड्थ गेन विद फीडबैक. तो जब हम जो हमारी लोअर कट ऑफ है, लोअर कट ऑफ हमारी डिक्रीज कर जाती है, और जो अपर कट ऑफ है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है. तो लोअर कट ऑफ का जो डिक्रीज है, इट मीन्स जो हमारे पास जो ये लोअर कट ऑफ होगी, न्यू वन विल बी इनिशियल न्यू वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा, और जो न्यू टू आएगी, जो हायर कट ऑफ आएगी, हायर कट ऑफ विल बी न्यू टू इज इक्वल टू सपोज न्यू टू डैश इनटू 1 प्लस ए बीटा. तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आती है विदाउट फीडबैक, क्योंकि गेन हमारा डिक्रीज कर गया. ये हमारे पास आती है विद फीडबैक. तो फीडबैक का, एक नेगेटिव फीडबैक का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, एक तो स्टेबिलिटी बढ़ा दी, दूसरा बैंडविड्थ बढ़ा दी, हमारे पास ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. ये हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर काम कर सकते हैं. दूसरा, इट इंक्रीज द सर्किट स्टेबिलिटी. देन इट गिव्स लेस फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेज डिस्टोर्शन, क्योंकि हमने बताया कि डिस्टोर्शंस को हमारे पास डिक्रीज करता है, तीनों तरह के डिस्टोर्शन को डिक्रीज करेगा. इट रिड्यूसेस द नॉइस गिवन बाय द एम्पलीफायर. It increases the input impedance and it decreases the output impedance. So these are the advantages of using negative feedback in a circuit of amplifier. तो today हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं. तो जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे के टॉपिक करेंगे. तो आज के लिए थैंक यू. किसी को अगर इस टॉपिक के अंदर या इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, फील फ्री टू आस्क. आप ईमेल आईडी के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप फोन कॉल के थ्रू आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. जब भी आपको लगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा. आप पूछिए और